Hi. Hello. Hello, people. Hello, gang. Hello, guys. क्या बोलें? Hello, everybody. कैसे हैं? How are you? How's everybody? I'm just back from our very high intensity Delhi trip. We had 4-5 events back to back. Our internal organization event where we connected with the team, we understood their concerns, challenges, and trying to be a better, I don't like to use the word boss, but a better team player, so that, my teachers are more satisfied, my people are more satisfied, and then they can further send that satisfaction to students. And then we had, I did my webinar from there. Also, I had 2 podcasts, and then I had my 2-day event. A fantastic 2-day event, overwhelming response, overwhelmed by the response, and tired, to say the least, very tired after all of that. या हैदराबाद में कब आ रहे हैं? अभी तो सीधे खड़े नहीं हुआ जा रहा बॉस है, देखो कैसे पहन के बैठे हूँ, बस ऐसा हो गया. आज सोऊंगी रात में अच्छे से, बट I'll plan. It's important to touch lives and let people know that working on your kid with autism, it at least deserves one try, one genuine try from your side, because the results will overwhelm you. And it's not even about you being overwhelmed with happiness, it's about the child's growth. Yeah. And offline event is another magic, next level magic, because people get to see live stories. Some of my already existing students come in and they share their stories. It's wonderful. So I will plan, but right now I will only plan sleeping. Oh, so tired. Tomorrow I get back to my routine, regular day. And here I am in front of all of you. Whatever questions you have, chalo ji, shuru ho jao, ask. But in spite of all of this, we didn't miss the masterclass. That happened on the 7th, and the next one now coming up is on the 14th. Yeah, so anybody who wants to join it, type I, my team will send you the link. कुछ मर्जी होता रहे, मास्टर क्लास नहीं बंद करते हम, छतरपुर के ट्रैफिक के बीच में से भी नहीं. Okay. My 4-year-old son doesn't eat anything, Chaudhary Anam. Now that could be interoception deficit, which means it's a sensory deficit where the ghrelin and leptin, the hormones in the brain, don't function properly. Sometimes the satiation hormone, पेट भरा हुआ वाला, is over functioning, तो भूख ही नहीं लगती. Sometimes the hunger hormone is over functioning, तो बच्चा रुकता ही नहीं, खाता ही चला जाता है. In your case, what you're saying, what I can safely assume, if it is a sensory deficit. If not, then you have to see another reason. Are there any physiological reasons why he's not eating? Deworming करा के देखो, constipation तो नहीं रहती है, वो सारा भी देखना पड़ेगा. बट अगर सब कुछ बाकी चीज़ें क्लियर हैं, मतलब MBBS डॉक्टर से सब टिक 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 क्लियर है, फिर नहीं हो रहा है, then there is a chance that it is interoception deficit. He just, the brain, the hormone functioning in the brain is not completely regulated, because of which he just doesn't want to feel like eating anything. Now that can lead to severe malnourishment, and it is dangerous to say the least. So little bit of force has to, lovingly. People hate me when I say it. Don't you dare ask us to force the kid. Bhai, if you tell your kid, listen, you have to get an injection, 4-year-old fellow, and I will not force you, I will not take you for the injection, but it is so important for you that your life depends on it. If you don't get it, then जानलेवा बीमारी हो सकती है, तो तुम अपनी खुशी से मेरे साथ चलो,
और डॉक्टर ये सुई इधर घुसा देगा और तुम खुशी खुशी लगा लो, होगा क्या? The child doesn't understand the gravity of it, he'll run away. So we force him, no, don't we? Yeah, let's be honest. We carry him like this, we hold him like this, we get the injection into the kid because that's needed. And imagine this is physical abuse and torture, but no police is catching you or the doctor. No. They are being authorized to do it because बच्चे की जान बचानी है. Understood the point? So if you realize that if there is a physiological issue, कॉन्स्टिपेशन है, डीवॉर्मिंग करानी पड़ेगी, कीड़े हैं पेट में, कुछ तो भी ऐसा इशू है जिसकी वजह से वो नहीं खा रहा है, MBBS वाला इशू, मेडिकल डॉक्टर, जो मुझे नहीं आता क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं, कुछ तो भी ऐसा इशू है जिसकी वजह से वो नहीं खा रहा है, तो पहले वहाँ फोर्स मत करो, उसको करेक्ट करो. अगर वो सब करेक्टेड है तो फिर आपको थोड़ा फोर्स का इस्तेमाल, क्योंकि फिर इंट्रोसेप्शन डेफिसिट है. अब इसको समझो, फोर्स से क्या होता है, व्हाट हैपन्स इन द बॉडी. When food goes into our stomach, the gastric juices are released. If you have a set routine every day कि आधी रोटी आधा केला खाना ही खाना है, 9:30 खाना ही खाना है. फोर्स का मतलब झापड़ मार के ऐसा वो वाला नहीं, प्यार से, ना बेटा ना बेटा ना बेटा, थू कोई बात नहीं, तेरे को ये चाहिए मुंह में डालो. तो थोड़ा चैलेंजिंग होगा, लेकिन फिर मोस्ट फेवर्ड लीस्ट फेवर्ड, इंपॉर्टेंट वाला देखो कैसे, जैसे जैसे आंसर बढ़ता है थकान हट रही है, अब मैं फॉर्म में और शेप में आ रही थकान भूल रहा है ब्रेन को. अब चम्मच के अंदर आगे लीस्ट प्रेफर्ड, पीछे एक आधी चीज भी खाता हो वो रखेंगे. ओके, दिस इज फॉर चिल्ड्रन. जो एक आधी चीज भी खाता हो, जो बिल्कुल ही नहीं खाता है, तो उसमें तो ये कैसे करोगे, उसमें तो सिंपल प्लेन धक्का परेड है कि चल, जैसे इंजेक्शन लगवाने की धक्का परेड, जबरदस्ती करना ही, वो केबिन देख के रोने लगेगा, फिर भी लेके जाना है, कराना है. वैसे तो अगर एक चीज भी पसंद है तो आइसक्रीम पीछे, आगे इतनी सी रोटी, ना बेटा ना आइसक्रीम चाहिए तो खाना पड़ेगा. अब जब आप हर रोज 9:30 बजे उसके अंदर खाना दे रहे हो हर रोज, 9:30 मतलब मैंने एग्जाम्पल लिया है, वो आपकी मर्जी है. ब्रेकफास्ट दे रहे हो, लंच दे रहे हो, डिनर दे रहे हो, एक टाइम पे आप दे ही रहे हो, आप नहीं रुक रहे हो. सो द गैस्ट्रिक जूसेस स्टार्ट गेटिंग प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दैट टाइम. तो आपने क्या किया, अब बॉडी में गैस्ट्रिक जूस हो रहा है तो उसको खाना चाहिए, तो वो ब्रेन को सिग्नल भेज रहे हैं. तो आपने लेप्टिन की फंक्शनिंग जो गड़बड़ थी उसको एक दूसरे रूट से केटर कर लिया. कैसे? एक टाइम पे भेज के अंदर से जूसेस रिलीज हो रहा है. अब रोज होने लग रहा है क्योंकि आप भेज रहे हो. अब वो ब्रेन को सिग्नल कर रहा है कि खाना दो, तो द चाइल्ड इज फीलिंग द अर्ज, और वो, तो हमने क्या किया, उस प्रॉब्लम को उस तरीके से टैकल किया. इतनी सारी साइंस मुझे बकने की जरूरत नहीं थी. आंसर सिंपली क्या था, धक्का परेड करके एक टाइम पे, एक फिक्स टाइम पे, 9:30, 2:30, 8:30, डन. अब यू कैन चेंज दीज टाइमिंग्स, बट दिस एग्जाम्पल every day whether he cries or not using reinforcers. बट मैं ऐसे बोलती तो आप बोलते कि इसको आता होता है नहीं, ये हर बात का एक ही बात कर देती है कि फोर्स कर लो. तो इसलिए मुझे इतनी सारी साइंस बतानी पड़ी. आता तो ऑब्वियसली मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, जितना आता है उसमें से ही बता सकती हूँ. बट हियर्स द पॉइंट, एवरीथिंग हैज साइंस एंड लॉजिक इन इट. या सो इफ ही इज नॉट ईटिंग, यू हैव टू पुट अ visual schedule, you have to lovingly force the child little bit, because it is important. Yeah, for all the people who are from the school of thought कि बच्चे को कभी push मत करो, they need to give it a serious rethink, है ना. Okay, all right, going forward, हाइपर एक्टिविटी ज्यादा हो, क्या करें शालू. अगेन सेम ऊपर वाले जैसा ही आंसर, जैसे अभी बोला था, एक विजुअल स्केड्यूल बनाओ. सबसे पहले तो आपको एक पेपर के ऊपर लिख के कि ओके, इसको मैंने दिन में, इसको ना ग्रिपिंग नहीं आती, आपके पास में गोल्स होने चाहिए, आपके पास में बच्चे की नॉलेज होनी चाहिए. इसलिए मास्टर क्लास ज्वाइन करो ताकि हम आपको सिखाएं कि किस किस एरिया में क्या 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 क्या
है ना, नहीं तो अभी मास्टर क्लास चल पड़ेगी 3 घंटे की, है ना। आपके पास एक गोल होने चाहिए कि ओके मेरे बच्चे को जंप करना नहीं आता, मेरे बच्चे को ऐसे ग्रिप करना नहीं आता, या ट्वीजर पकड़ने नहीं आता, तो आपको पता तो होना चाहिए कौन इसकी एज के हिसाब से कौन सी चीजें नहीं आती। तो ठीक है, तो आप पहले चेक करोगे उसे क्या क्या नहीं आता, ठीक है। फिर आप बोलोगे सुबह 9:30 बजे ये, 10 बजे ये, 11 बजे ये, 12 बजे ये। स्कूल जाता है तो इतना टाइम स्कूल गया, स्कूल से वापस आने के बाद ये आपका पूरा दिन ऐसे प्लान होना चाहिए। अब आप उसको वो कराना शुरू कर दोगे लगातार लगातार लगातार। प्रोसेस्ड शुगर्स, मैदा, वाइट व्हीट जो होता है वो सब थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि वो क्या है कि उससे बढ़ती है। तो अच्छा खाना दो, है ना। केक बनाओगे तो रागी का केक बना लो, बीच में अगर आप नॉनवेज हो तो अंडा डालो, नहीं हो तो दही डालो, और आटे का मत यूज करो, मैदा तो बिल्कुल ही नहीं, और हनी से उसको मीठा करो इंस्टेड ऑफ चीनी, उसमें डेट्स डालो, ऐसे ऐसे सब। तो खाने के भी रागी के कुकीज आती हैं, मिलेट्स के कुकीज आते हैं, वो गंदे गंदे बोन के बिस्किट चॉकलेट के भरे हुए, वो मत दे दो। और साथ में आपने पूरा विजुअल स्केड्यूल, यू मेड अ नाइस visual schedule, and you know your kid like the back of your hand, like okay now you're gonna do this and this and this, और उसके बाद रजनी स्टाइल द कप रेड, बेटा लाइक इट और लंप इट ये करना है, एंड आई लव यू चल करें। उसमें क्या होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ 2, 3, 4, 5 months the energies will begin to, they're scattered, so they will begin to get focused and hyperactivity will reduce, है ना। okay, suggest something, क्या चौधरी अनम बताया, तो आपको भी बताया ना। हाइपर एक्टिविटी ज्यादा हो तो क्या करे वो भी बताया अभी। ओके, पीपल राइटिंग आई, सुप्रिया टेक केयर, सेंड देम द लिंक्स। फिर से पूछ रहे शालू हाइपर एक्टिविटी, मैंने बताया अभी डियर, बार बार पूछ रहे हाइपर एक्टिविटी ज्यादा हो तो क्या करे, अभी तो बताया आपको ये, इससे पहले आप ही गए आंसर करें। माई चाइल्ड डजंट सिट एट वन प्लेस, ऑलवेज रनिंग। प्रीतिका योर आंसर इज द सेम एज शालू अलावादी, या सेम एज दैट। Doesn't sit at a place because in-seat hasn't been developed. In-seat hasn't been developed because there is no structured routine around the kid. There is no structured routine because you're trying to raise an autistic child pretty much like you would raise a regular normal. Autistic is also normal, and non-autistic is also normal. So you are trying to, no, let me rephrase it. You are trying to be a normal parent. You have to be a parent with specialized skills. हाँ, normal यहाँ यूज होना चाहिए. You are trying to be a normal parent. Normal parent कैसा है? आप किचन में काम कर रहे, बच्चा अपना काम कर रहा है, कुछ अपना खेल रहा है, कुछ कर रहा है, टीवी देख रहा है, किसी से बात कर रहा है, कोई कलरिंग कर रहा है. ऐसे ऑटिस्टिक बच्चा बड़ा नहीं होगा. यू कैन नॉट बी अ नॉर्मल पेरेंट. टू नॉर्मल की आज सबसे अच्छी डेफिनेशन मुझे मिली है. बोलते हैं ना ये बच्चा नॉर्मल है, ये पेरेंट नॉर्मल है, ये नॉर्मल पेरेंट नहीं चाहिए, ये स्पेशलाइज्ड पेरेंट चाहिए यहाँ पर. सो यू हैव टू लर्न ऑटिज्म स्पेसिफिक टीचिंग ट्रेनिंग टेक्निक्स, विच इज अगेन जैसे शालू के केस में मैंने बोला प्रीतिका, सेम थिंग, विच इज नो योर चाइल्ड्स डेफिसिट्स. ओके, उसकी कमियां जानो. ओके, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये शर्ट पहनता है तो उल्टी पहन लेता है, चप्पल पहनता है तो ऐसे की पहन लेता है, ऐसे की जगह पे. और क्या चीज है जो उसको पैर टो ऊपर करके चलता है, क्या 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 है. नो योर चाइल्ड. ओके, पूरा. फिर उसके बाद उसका प्लान बना लेंगे, फिर उसके पीछे लग जाएंगे, प्यार से पीछे लग जाएंगे सारा दिन. ओके, डू दिस एंड डू दिस एंड डू दिस एंड डू दिस. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, through the repetition, through the power of repetition, you will see your child will begin to follow a set specific routine and the hyperactivity will reduce. This is the most organic answer that I can give. Besides this boring answer which I always give,
this long time taking frustrating answer, there is a very exciting fast simple 30 to 40 minute quick answer. Okay, 30 to 40 minute में result वाला quick answer, which is medicine. Yeah, that is a choice, but it's not the best choice. It's not the best choice, no. Because what happens is the brain is not learning impulse control. The brain is not learning that here is a chair, I cannot run here and there, I have to go and settle and sit down in that chair. The brain is not knowing this. You numbed it. बोलते हैं ना, कहीं पे गंदा है कारपेट के नीचे डाल दो, छुपा दो, अपने प्रॉब्लम के ऊपर से पर्दा रख दो, प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है ना, तो आपने दवाई देके सुन्न कर दिया, तो सुन्न कर दिया तो ब्रेन सीखा थोड़ी, और क्या हो गया, सुन्न करने की वजह से ब्रेन के सीखने की क्षमता और गिर गई। उसे एक्टिव मोड में रहना था, सुन्न नहीं होना था, प्रैक्टिस डालनी थी, तब वो सीखता। हर रोज जाकर के यहाँ बैठना है, ये काम करना है, फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करोगे, सुबह सुबह उसको वॉक के लिए रन के लिए लेके जाओगे, नॉर्मल पेरेंट मत बनोगे। ओके, आज के बाद मैं यही बोलूँगी कि कोई बोलेगा ना जी मेरा बच्चा छोटा वाला तो नॉर्मल है, मेरे को ऐसे बोलते हैं ना कि हाँ बड़े वाला ऑटिस्टिक है, छोटा वाला नॉर्मल है, तो मैं तपाट से बोलती हूँ बच्चे दोनों नॉर्मल है, वो भी नॉर्मल है वो भी नॉर्मल है। आप नॉर्मल पेरेंट हो बड़े वाले के लिए, आपको स्पेशलाइज पेरेंट होना है बड़े वाले के लिए, बड़े वाले नॉर्मल के लिए। ओके, या नेक्स्ट, वो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनता। शालू, फिर आपको मास्टर क्लास की जरूरत है, क्योंकि आपको बिहेवियर करेक्शन प्रोटोकॉल की जरूरत है, टेक्निकल स्टेप्स सीखने की। वही नॉर्मल पेरेंट होना छोड़ो। नॉर्मल पेरेंट क्या करेगा, बेटा प्लीज सुनो सुनो, बच्चा बेच खाए आपको, निकल लिया। तो नॉर्मल पेरेंट से ऑटिस्टिक अपब्रिंगिंग नहीं होगी, कोशिश मत करो, है ना। सो व्हाट यू डू इज join the master class where we'll do the behavior correction protocol, and we will teach you how to build instructional control for the child, so that the child creates a rigid pattern that the child listens to you, है ना। आपकी बात सुनेगा तो तभी वो, too many mosquitoes in my room, इधर इधर काट रहा है। आपकी बात सुनेगा तभी आप उसको सिखा पाओगे। The 5 finger model, behavior corrections, it starts the process, followed by language development, followed by social skill development, followed by life skill development and academic skills, and to add to it the sensory dysfunction regulation। जब ये सारी चीज हम डालेंगे बच्चे के साथ में तो उसकी होलिस्टिक ग्रोथ होएगी, है ना। तो फिर वेबिनार ज्वाइन करो, क्योंकि वो तो 1 घंटे का टॉपिक है पूरा बिहेवियर करेक्शन का, तो वहां पर मैं फ्राइडे को अभी 14th को वो करने वाली। ओके जी, और क्या क्वेश्चन है आपका। उसको भूख लगती है बट खाना कुछ नहीं चाहता, सब कुछ फोर्स करके ही खिलाना होता है। ये फिर आपको चेक करने की जरूरत है ना, कि पहले तो आप डॉक्टर से, एमबीबीएस से चेक करो। देखो मैं तो आपको जो आप सिम्टम बोलोगे उसके हिसाब से ही बोल सकती हूँ, है ना, मैं एमबीबीएस डॉक्टर तो नहीं हूँ। खाना ना खाने के 2 3 4 अब जो आप बोल रहे हो उसके अंदर एक एलिमेंट और जुड़ गया, मैं वो भी बताती हूँ। रिजिड पैटर्न कि भूख तो लगी है मेरे को, पर अब मम्मी मेरे आगे पीछे 5 बार घूमेगी, मेरे को अटेंशन सीकिंग, मतलब अटेंशन मिलेगी, बार बार मम्मी बोलेगी बाबू खाना खा, बाबू खाना खा, तब मैं एक बाइट लूंगा फिर मैं भाग जाऊंगा। ये भी एक एलिमेंट हो सकता है। ये जो आपने अभी बात बोली है इससे लग रहा है ना। तो कितने हो सकते हैं, या तो कोई मेडिकल डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि डीवॉर्मिंग कराने की जरूरत है तो पेट हमेशा भरा रहता है, कॉन्स्टिपेशन की जरूरत है, गैस ब्लोटिंग जरूरत है नहीं, मतलब कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करने की जरूरत है कि गैस ब्लोटिंग वो सब नहीं हो, वो एरिया चेक हो गया, सब ठीक है। तो सेंसरी डेफिसिट का कुछ हो सकता है कि उसको भूख ही नहीं लगती। अब आपने ये स्टेटमेंट में क्या बोला, भूख तो लगती है पर खाता नहीं है, तो ये बिहेवियर है। तो इसमें आपको बिहेवियर करेक्शन प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ेगी, है ना। एक्सपेक्टेशन सेटिंग, प्रीएम्प्टिंग, सेंस ऑफ लॉस, उसमें फिर आपको
क्लियरली उसको कम्युनिकेट करना है। हम टर्न बजेगा, हम यहाँ बैठेंगे। एक अच्छी सी प्लेट खरीद के लाइए उसके लिए, है ना, मिकी माउस की या क्या उसकी पसंद की, उसको ले जाइए। ये डी मार्ट शी मार्ट में यहाँ मिलती हैं बच्चों की प्लास्टिक की प्लेटें। अब बोलिए कौन सी वाली चाहिए। फिर ये प्लेट में हम इतना रखेंगे, टर्न बजेगा, ये चेयर में बैठेंगे, अपने आप उसको हाथ में मुंह में डालेंगे, ठीक है। या तो फिर अगर आप खिलाएंगे, क्योंकि वो एक अलग गोल हो गया, तो एक टाइम पे 2 गोल वो ज़्यादा रिस्की हो जाएगा अगर ना आप हैंडल कर पाए तो एक टाइम पे आप एक ही गोल रखो। तो मम्मा आपको खिलाएगी, आप यहाँ पर बैठेंगे, आप ये फिनिश करेंगे। आप फिनिश करेंगे तो ही मैं आपको फला फला चीज दूंगी। रीइंफोर्सर्स लाएंगे बीच में। फिनिश नहीं हुआ तो वो वाली चीज भी आपको मिलने वाली नहीं है। तो इस तरीके से हमने प्रॉपरली बच्चे के साथ एक्सपेक्टेशन सेटिंग, एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर एक्सपेक्टेशन सेटिंग करके, सेंस ऑफ लॉस करके, बिहेवियर करेक्शन के एंगल से, थूकेगा आपने अगर उसके सामने कुछ और उसका टॉय रखा है तो आप वो हटा देंगे, या कोई चीज़ उसको पसंद है। अब अगर आप ये कहेंगे मुझे पता ही नहीं उसको क्या रीइंफोर्सर्स चाहिए, तो फिर आपको मास्टर क्लास में आना चाहिए ताकि हम सिखा सके किस तरीके की रीइंफोर्स आपको क्या यूज़ करना चाहिए, है ना। उसमें भी हमें बच्चे के स्पेसिफिक लर्निंग स्टाइल्स देखने पड़ेंगे। कुल मिला के बात इतनी है, बच्चे को सेंटर में रखेंगे और देखेंगे इसे क्या पसंद है, उसको मैनिपुलेट करते हुए बच्चे को कहेंगे कि अब तुम्हें अगर ये चाहिए तो तुम्हें माँ की बात माननी है, क्योंकि टर्न बजा है, ये फूड टाइम है, तुम नहीं हिल सकते, अब बैठो और खाओ। फिर उसमें जब वो भागने की कोशिश करेगा तो हम फिजिकल रिस्ट्रेनमेंट करेंगे, पकड़ा बच्चे को वहीं पे बैठा लिया, धर लिया। इसमें घर वालों की इंटरफेरेंस हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक साइंटिफिक प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। तो अरे छोड़ दो, आला बला आला बड़ा, वहां पे दादी अपना लगी हैं, अपना पापा अपना लगे हैं, अपना, उनको सबको अपनी शांति चाहिए कि बच्चे सीख जाते हैं, तंग मत करो, फोर्स मत करो। उनको बोलो जी थैंक यू, आप जाएं, मुझे मेरा काम करने दें, है ना। एंड यू सिट डाउन, यू क्लोज द डोर, यू वर्क विद द चाइल्ड, यू सेटल द किड, यू फीड द किड। शुरुआत में इतना सा खाएगा, इतनी प्रेज देंगे, फिर थोड़ा और खाएगा, फिर और प्रेज देंगे। तो इस तरीके से वी गोना टेक इट फॉरवर्ड। या फर्स्ट चेक व्हाट इज द रूट कॉज। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा बेटा कभी भी चला जाता है और किसी के साथ भी, कहीं भी चला जाता है और किसी के साथ भी। बबीता कोटेरी। ओके, एक्सपेक्टेशन सेटिंग करेंगे। यहाँ पे आपको सिचुएशन कॉन्ट्राइव करनी पड़ेगी। क्या होता है सिचुएशन कॉन्ट्राइव करना? ये हमारे ग्रुप पे भी किसी के साथ था, तो उनको भी ये चीज़ मैंने सेम एक्सप्लेन की थी। आई एम येट टू गेट एन आंसर फ्रॉम दैट पर्सन ऑफ हाउ शी हैंडल्ड इट, बिकॉज ये मैंने दिल्ली ट्रिप पे जाने से पहले मैंने उनको ये चीज़ बताई थी। अब देखिए क्या करना होता है इसमें। कहीं पर भी चला जाता है, दरवाज़ा खुला रखिए। सिचुएशन पहले तो एक्सपेक्टेशन सेटिंग, बेटा हम यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, अंदर रहेंगे। ओके, हम क्या करेंगे, रिजिड पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं विच इज वर्किंग इन फेवर ऑफ द चाइल्ड। दरवाजे के बाहर मेड है, वेट कर रही कि आएगा, क्योंकि हमने एक्सपेक्टेशन सेटिंग करी कि नहीं बाहर जाएंगे और दरवाजा खुला छोड़ा। अगर आप बाहर गए तो मम्मा को ये खीर खा लेनी पड़ेगी, या ये टॉय मम्मा ले लेगी, या जो भी उसका रीइंफोर्सर है, ये फलां चीज़ फिर नहीं होगी, ये कलरिंग बुक मैं हटा लूंगी जो उसको पसंद है। ओके, अब दरवाज़ा जानबूझ के खुला रखा है, ये पूरा उसको बताया है, ठीक है, ये नहीं करना है, अंदर रहना है। अब वो सारा ज्ञान सुन के जैसे ही आप हिले वो दरवाजे से बाहर जाओ। जैसे ही वो बाहर गया, धप से मेड ने पकड़ लिया, क्योंकि आपने सिचुएशन कॉन्ट्राइव की हुई है, आपने खुद ये क्रिएट किया। आपने उसको क्या बोला, मेड ने क्या बोला, कहाँ जा रहे थे, मम्मी ने मना किया था ना, अंदर चलो। एंड शी पुश्ड हिम बैक इन, पुश्ड एज इन नॉट यू नो वो ड्रामेटिक सास बहू वो ठा वो वाला नहीं, पुश्ड हिम बैक इन एज इन शी टुक हिम बैक इन द हाउस and you said so, you chose not to listen. Okay, I'm gonna have to take this away. Now he will begin to cry and this and that. You say no, you know listen, I know listen. You want this, you listen. You know listen, I know listen. Finish. आपको नहीं सुनना है तो मेरे को भी नहीं सुनना। आप बाहर गए क्यों?
फिर आपने एक बार उसकी चीज ले ली, उसने खूब रोया, तांडव किया, अब आपने बोला चाहिए, ये चीज चाहिए, अब उसको जिद हो गई कि चीज तो चाहिए, ली कैसे, बोलो अब बाहर नहीं जाओगे, मैं 10 काउंट करूंगी, तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगे। अब आप सोफे पे बैठे हैं, दरवाजा खुला है, मेड बाहर है, सेम अरेंजमेंट। अब आप 1 बोल रहे ध्यान रखो, कंट्रोल करो, बाहर नहीं जाओगे, ये तुम्हारी वेट कर रहा है टेबल पे रख के, एक्सीलेंट, आई लव यू, वेरी गुड, कंट्रोल करो। हम क्या कर रहे हैं, इम्पल्स कंट्रोल सिखा रहे हैं कि बेटा दरवाजा खुला है मतलब कहीं भी चल पड़ोगे, ऐसे नहीं कर सकते, आपको यहीं रहना है। फिर हम उनको सिखाएंगे, मम्मी को पूछोगे, बोलोगे मैं जाऊं, या जो भी आपकी सिचुएशन है कि मम्मी का हाथ पकड़ोगे, मम्मी के साथ जाओगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि अगर आप हमारे मास्टर क्लास में आप आओ, हम आपको दिखाते हैं एक्सपेरिमेंट बेसिस पे इसी चीज़ का। हमारी एक स्टूडेंट का, किरणमयी उनका नाम है, किरणमयी अरसिद, उन्होंने रूम में छोड़ करके, दरवाज़ा खुला छोड़ करके और बबल्स देंगे, ये करेंगे, 40 सेकेंड्स 1 मिनट तक बच्चे को बैठाया है और वो अंदर के रूम में है, एंड द चाइल्ड डिड नॉट रन अवे, है ना। और फिर उसके बाद बाहर आके उसको बबल्स दिया है, वो खेल रहा है नॉल। तो ये तरीकों से सिखाया जाता है बच्चों को टू कंटेन देमसेल्व्स विद इन अ गिवन सेट ऑफ बाउंड्रीज, कि ये कर सकता है बच्चे तो ये नहीं कर सकता, ऐसे करके। ओके, विजुअल में क्या करूं, क्या मतलब इसका, इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ, विजुअल में क्या करूं, क्या मतलब उसका। टाइम टेबल पूरा डे बिजी रखना पड़ेगा। ऑटिस्टिक चाइल्ड नॉर्मल पेरेंट बड़ा नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। ऑटिस्टिक चाइल्ड को नॉर्मल पेरेंटिंग दोगे तो फिर आश्रम के लिए तैयार कर रहे हो, ये याद रखना। बस मैं एक उम्मीद के सारे बैठी रहूं कि क्या शायद किसी दिन को अपने आप ही सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं तो रोज पूजा करती हूँ तो फिर आप उसको आश्रम के लिए तैयार कर रहे हो, वहीं पहुंचेगा। ऑटिस्टिक पेरेंट को एक्सेप्शनल स्किल्स के साथ ही बड़ा कर पाओगे। ये पढ़ेगा वर्ड जो है ना, इसमें मजबूरी दिख रही है, पढ़ेगा नहीं है, बच्चा अपना है यार। मुझे एक टांग पर पूरी रात खड़े होके आसन करना पड़े इसके लिए तो मैं राजी हूँ। पढ़ेगा क्या होता है, पूरा दिन बिजी रखना है। हाँ, अब ये बहुत होता है मेरे साथ। कई लोग मेरे को मैसेज करते हैं बड़ी ही उन एक्सपेक्टेशन के साथ कि पता नहीं ये हमें हमारी मुसीबत दूर कर देगी, और मेरी इच्छा भी है कि मैं आपकी हेल्प करूं। मैं जब बताती हूँ क्या करना है तो बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं फिर। अरे तो मैं कोई जादूगरनी थोड़ी हूँ, कोई इल्यूशनिस्ट थोड़ी हूँ, मैं कोई हिप्नोथेरेपिस्ट थोड़ी हूँ मैं कि मैं ऐसे ही हिलाऊंगी और बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक से सो कॉल्ड नॉर्मल हो जाएगा। बच्चा ऑटिस्टिक से सो कॉल्ड नॉर्मल नहीं होने वाला, पेरेंट को नॉर्मल से स्पेशलाइज्ड पेरेंट होना पड़ेगा, है ना। मेंटली रेडी हो जाओ, ये सब करना पड़ेगा शुरुआत के सालों में, तभी बच्चा कंट्रोल में आएगा, है ना। 4-year-old नो स्पीच आपको फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन के प्रिंसिपल के हिसाब से हर रोज फ्लैश कार्ड्स दिखा करके 20 मिनट बैठाना है 21 दिन तक। घर की चीज़ों के फ्लैश कार्ड दिखाने हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे कि जो चीज़ें आपके काम में आएंगी, जैसे कि फुटमैट, डस्टबिन, डोर नॉब, फैन, स्विच, ऐसी चीज़ें। क्यों? क्योंकि अगर आप करेंगे ये जिराफ है और ये एलिफेंट है और ये टाइगर है, तो आप उसको आगे सेंटेंसेस में नहीं ले जा पाएंगे, वो वहीं पे ही ख़त्म हो जाएगा। जिराफ और टाइगर, और बहुत ज़्यादा ही कर लेंगे तो जिराफ के 4 पैर होते हैं, टाइगर की 1 पूंछ होती है, बियॉन्ड दैट कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपने फुटमैट, डस्टबिन, डोर नॉब, स्विच, AC, रिमोट, तो हम उसको फिर आगे ले जाएंगे। कैसे? डस्टबिन में रैपर डाला सिखाएंगे, है ना। तो उसके लिए पहले सिंगल वर्ड्स पिक्चर कार्ड लेकर के 20 मिनट्स के लिए, दिन में 3 बार, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, हाई ड्यूरेशन 20 मिनट, 21 दिन के लिए, लगातार लगातार लगातार, है ना। एक उम्मीद के साथ, एक दृढ़ विश्वास और निश्चय के साथ कि इतने बच्चों का हुआ है तो मैंने ऐसी कौन सी भगवान के घर में ऐसा क्या बुरा किया है कि मेरा नहीं होगा।
और लगातार लगातार until you see the child begins to utter the first words. पहले फर्स्ट वर्ड्स आएंगे, फिर आप 2 वर्ड सिखाएंगे. जैसे पानी सीख गया तो बोलेंगे अभी पूरा बोल पानी दो, अभी पूरा बोल मम्मा पानी दो. तो एक एक चीज सिखा सिखा के ही आगे लेके जाना पड़ेगा. अब मुझे पता है थक जाओगे, मैं भी थक गई थी, लेकिन मुझे थकने की इतनी आदत पड़ गई कि जब मेरा बेटा सेटल हो गया तो बिना थके मुझे समझ ही नहीं आई क्या करूं. तो मैंने बाकियों के बच्चों के साथ काम करना शुरू कर दिया, बाकियों की माओं के साथ काम करना शुरू कर दिया. और एक राज की बात बताऊं, बच्चों के साथ काम करना वे इजियर है. माओं के रिजिड पैटर्न ऐसे हैं, वो नहीं सुधरती. नॉट ऑल, सम ऑफ देम. वो पक्की हो जाती हैं कि हमें तो बिना काम मेहनत डालने वाला कोई सोल्यूशन दो, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता. रिजल्ट क्या होता है? बच्चे की बर्बादी. तो उनको कन्विंस करना कि भाई इसे खाई में मत गिरने दे, बचा ले वक्त रहते, वो बच्चे के बिहेवियर ठीक करने से ना एटलीस्ट 3x डिफिकल्ट है. बच्चे के तो ऐसे हो जाते हैं बिहेवियर ठीक, अगर आप सिस्टम लगा के काम करेंगे तो, है ना. और सीखना है तो 14th को हमारी मास्टर क्लास है. आई टाइप करो, मेरी टीम आपको देगी लिंक उसका मास्टर क्लास का, एंड कम ऑन इन, जॉइन अस. एक बात मान के चलो, अकाउंटेबिलिटी आपको लेनी ही पड़ेगी. अब रो के ले लोगे, खुश हो के ले लोगे, रो के ले लोगे, दुखी हो के लोगे, लेकिन आखिर अकाउंटेबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा आपका है. बाहर वालों ने ना पहले किया ना आगे करेंगे, है ना. अगर किया ही होता तो यहाँ पे नहीं बैठ रहे होते अभी, राइट, है ना. ओके, डीवॉर्मिंग क्या है? उसको कॉन्स्टिपेशन था पहले, अब नहीं है. डीवॉर्मिंग कीड़े, पेट में कीड़े, वॉर्म्स, WORMING नहीं, ये तो कुछ और ही हो गया. WARM तो हो गया गरम. वर्म्स, WORM, बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं ना, उससे भी भरी भरी फीलिंग आती है, बिकॉज इंटेस्टाइन्स पूरा भरा होता है, अंदर वो कीड़े होते हैं. डीवॉर्मिंग वो इट्स अ सिंपल मेडिकल प्रोसीजर है. वो गोली देते हैं, फिर वो कीड़े मर जाते हैं, पॉटी में निकल जाते हैं, सो दे फील लेस ब्लोटेड. तो वो चेक करना पड़ता है. वो हर बच्चे के साथ होता है, पेट में कीड़े हो जाते हैं बच्चों को, तो डॉक्टर आपको बता देगा वो कि डीवॉर्मिंग कराने की जरूरत है कि नहीं. टाइम टू टाइम करानी पड़ती है छोटे बच्चों के साथ ना. अब आप बोल रहे हो उसको कॉन्स्टिपेशन था, है ना, तो क्या मालूम अभी भी है कि नहीं है. इसीलिए कह रही हूँ ना कि किसी भी कंक्लूजन पे जंप करने से पहले देखिए, पीपल, एवरीबडी हियर, 56 ऑफ यू सिटिंग हियर, before you jump to any conclusion with your kid, because your kid is on the spectrum, understand this. Please eliminate A to Z of medical reasons. One of my students, that lady struggled the longest ever कि ये बोर्ड से कॉपी नहीं करता है, ये सेंसरी डिसफंक्शन है, ये फला है, ये फोकस का इशू है, इसको अंदर से कुछ उठ रहा है. रिजल्ट क्या था? इसकी जरूरत थी उसको, वो कॉपी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी आई साइट वीक थी और किसी को पता नहीं था. और ये तो बच्चा भी नहीं बता सकता, न्यूरोटिपिकल भी नहीं बता सकता कि मामा मेरी आई साइट वीक है. वो तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास ले जाओगे, आईज टेस्ट करेगा, तभी आपको समझ में आएगी कि ओके ये था. तो सबसे पहले जो सबसे ऑब्वियस है, जो कि रिजल्ट्स में, स्क्रीनिंग में निकल आएगा, जिसमें साइकोलॉजी की 2 और 2 4 नहीं लगानी पड़ेंगी, टेस्ट में दिख के निकल आएगा, वो मेडिकल है. पहले मेडिकल कराओ, सारा पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं, है ना. वो सब रूल आउट करो, उसके बाद जो मैंने आपको बताया वो कर लो. कैन आई गिव हिम सबवे सर्फर टू प्ले? नो, ये काम नहीं. बहुत ही बुरी चीज है ये. न्यूरल पाथवेज डिस्ट्रॉय कर देगा. वो एक ही चीज के पीछे 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 पीछे, और उससे डोपामीन रिलीज हो रही है, तो उसको एडिक्शन हो जाएगी फिर, क्योंकि उसको वो डोपामीन चाहिए. एक तो उसे स्वयं से खेलने को नहीं आता, कुछ करने को नहीं आता. अब हमने जो उसकी, आपको ये ध्यान है, हमारे टाइम पे गीटे खेलते थे, वो पत्थर वाले ऐसे उछालते थे, ऐसे ऐसे करके खेलते थे ना,
हमारे टाइम पे स्टेपू खेलते थे, वो ठीपी सी फेंकते थे, फिर ऐसे 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 करके खेलते थे जमीन पे। पिट्ठू खेलते थे, पत्थर पे पत्थर रख के दूर से मारा भागे। ये सब पत्थरों के साथ, जीरो खर्चे के साथ गेम्स हमने क्यों बना ली थी? हमारा ब्रेन एक्टिवली काम कर रहा था कि अपने आप को हैप्पी कैसे करूं, है ना, एंगेज कैसे करूं। इंटरनेट था नहीं, टीवी था नहीं, क्या हुआ उससे हम कितने क्रिएटिव हो गए। आज हम कितनी चीजें ऐसे पत्थरों में से निकाल रहे हैं। थॉट प्रोसेस क्रिएटिव हो गया, ये करें वो करें, मेंटल मसल बिल्ड हुआ। अब उसी का ऑपोजिट देखो, सबवे सर्फर दे दो, वो कुत्ता सा भगाई जाना है, वो कुत्ता नहीं आदमी सा, है ना, उसके पीछे वो भगाई जाना है, वो पुलिस वाला। वही गेम है ना, वो एक लड़का वो जो ग्रेफिटी बनाता है, पुलिस वाला उसके पीछे भागता है। कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, बस इधर हिलना है, इधर हिलना है, इधर हिलना है, इधर हिलना है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। मुझे कैसे पता है? ये कमबख्त वीर नहीं पीछा छोड़ता था। फिर मैंने टेलीस्कोप ला, ये ला, वो ला, इसमें ध्यान दे, इसमें ध्यान दे, छोड़ इसकी जान, निकाला मैंने बाहर। तो वो उसके अंदर ही फिक्स रहेगा, और जैसे जैसे वो बचाता जाएगा वैसे वैसे डोपामिन रिलीज होगी। डोपामिन रिलीज होगी तो एडिक्शन पकड़ जाएगी। एडिक्शन पकड़ गई तो दैट्स द रोड टू हेल, क्योंकि वो पहले ही कुछ और नया नहीं सीख रहा, बचा कुछ अभी नया सीखना खत्म, है ना। तो ये सब नहीं करना है। सबवे सर्वर तो कुछ, अगर आप बोलते ना लैंग्विनी दे दूं, फिर भी समझ में आता था। लैंग्विनी स्पेलिंग्स की गेम है, LANGUINI। कम से कम स्पेलिंग्स ही लर्न कर रहा है बच्चा, है ना, कोई क्रॉसवर्ड ही कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। फिजिक्स की बड़ी सारी गेम्स आती हैं कि डंडे को मैं ऐसा गिराऊंगा तो ये बॉल अंदर जाएगी, उसमें फिजिक्स का प्रिंसिपल नहीं है, पर ब्रेन काम कर रहा है कि डंडे को किधर को गिराऊं ताकि बॉल होल में से नीचे जाए या ना जाए। वो वाले देखो, सबवे सर्फर ने क्या वहां पे, और एंग्री बर्ड ने कौन से लड्डू दे देने, वो नहीं चाहिए, या कैंडी क्रश, इनसे दूर रहो, बिल्कुल नहीं। Okay, I think it's about time. Okay, guys, thank you so much for showing up. Come on in for the webinar. I'll be fresh by then. The tiredness will be gone tonight. And may each kid win, may each parent win. इतनी सक्सेस मिली है कि मैं एडिक्ट हो गई हूँ सक्सेस की। अब मुझे किसी भी बच्चे को हारता हुआ देखते हुए मेरा दिल घबराने लगता है। मुझे लगता है झकझोड़ के इसके माँ बाप को उठाऊं, खसमा नुखानी मर जानी, आ देख आ की कर रही है, इन्हों ठीक कर, आ बच्चा ठीक हो सकता है। मेरी दादी ऐसे बोलती होती थी, खसमा नुखानी मर जानी की कर रही। हाँ, so please wake up to the fact that your child with autism is as capable as your child without autism. Your child with autism requires specific teaching and training techniques to be able to reach their full potential. अपना काम ढंग से करोगे तो बच्चे की किस्मत को रोना नहीं पड़ेगा। नहीं तो फिर ब्लेम करने को तो कोई ना कोई चाहिए, तो बोलेंगे ये लो फंक्शनिंग था, ये डिसेबल्ड था, इसलिए ये नहीं सीखा। तो उस रोड पे मत जाना, है ना। खुद सीखते जाओ, आपका बच्चा आगे बढ़ता जाएगा।